सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस। हमने देखा था एक ज़माने में प्राइमरी सर्कुलेशंस, सेकेंडरी देखा था क्या, हमारे साइक्लोन्स एंड मॉनसून, ठीक है। तो सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस, ठीक है। इनमें सबसे पहले वी विल सी व्हाट, साइक्लोन्स। व्हाट आर साइक्लोन्स? हाँ, साइक्लोन्स आर व्हाट, लो प्रेशर एरियाज। अगर ये लो प्रेशर एरियाज है तो कल के वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो लो प्रेशर के साथ एसोसिएटेड थे, बैड वेदर, प्रेसिपिटेशन, एवरीथिंग विल बी एसोसिएटेड विद अ साइक्लोन, ठीक है। तो साइक्लोन्स आर, एक थोड़ी सी अच्छी डेफिनेशन, आर thermodynamic modifications of primary circulations. They are nothing but primary circulations, but something is going on and it is turning them into a different character, a different mode, ठीक है। थर्मोडाइनमिक, इट मीन्स हीट का लेना देना है कुछ। प्राइमरी सर्कुलेशंस में हीट का उधर इधर हो जाता है, क्या होता है वो देख लेंगे, लेकिन समथिंग रिलेटेड टू व्हाट, हीट। And these heat related modifications in the primary circulations results in secondary atmospheric circulations, and one of the type of secondary atmospheric circulation is the cyclone, are you understanding this thing first, ठीक है। तो these are the thermodynamic modifications of primary circulations resulting in the secondary circulations, and the secondary circulation का पहला पार्ट है आपका क्या, cyclones। Furthermore, these cyclones are divided into two main categories, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। They are further divided into two, temperate cyclones and tropical cyclones. नाम से ही पता चलेगा, this will be in the tropical region from 23 degree half north to 23 degree half south in the tropics. जो भी साइक्लोन होगा वो कहलाएगा क्या, ट्रॉपिकल साइक्लोन। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, we will see. And temperate means this will be in the temperate zone beyond tropics. Beyond tropics, it can be also known as extra tropical cyclone. Extra tropical cyclone. Have you understood the dynamics of this extra tropical? आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? हाँ, तो मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन, उस बॉडी को ये भी कह सकता हूँ ना, इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह सकता हूँ, लेकिन मैं उसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहता हूँ। क्यों, कोई फर्क है? तो वो भी तो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। या तो स्टैट्यूटरी बॉडी कहूंगा, अगर लॉ से बनी है तो बोल दिया स्टैट्यूटरी, तो स्टैट्यूटरी बॉडी को भी मैं कह सकता हूँ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या मैं उस स्टैट्यूटरी बॉडी को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकता हूँ? यह कंसेप्चुअल क्लैरिटी आसान, ठीक है, वरना नाम सब कुछ सुने होते हैं। What is this extra word? ठीक है, this extra word signifies power or authority. Whenever a body is called extra constitutional body, it automatically refers, this body is not mentioned in the constitution, but it's no less than a constitutional body. ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके पावर्स, अथॉरिटी, फंक्शन कहीं तरीके से कम है। Non-constitutional body, an extra constitutional body can take into account constitutional bodies as well. For example, you had once upon a time known as planning commission. Okay, planning commission became so much centralized that even the constitutional bodies had to take the permission of planning commission. Planning commission can be termed as an extra constitutional body. Why? No doubt this is not mentioned in constitution, but signifies authority and power. छोड़ो इस चीज को, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, ये वही है। नो डाउट इट इज इन द व्हाट, इट इज नॉट इन द ट्रॉपिकल। जो आपको यहाँ पे ये तूफान आते हैं ऐसे गोल चक्कर करके, वो ये वाले ट्रॉपिक्स में। नो डाउट इट्स नॉट दैट, बट इसका ये मतलब नहीं है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक और नाम वेव साइक्लोन, एक और नाम
फ्रंटल साइक्लोन, ठीक है, फ्रंटल साइक्लोन। एक और नाम फैमिली ऑफ साइक्लोन, फैमिली ऑफ साइक्लोन्स। Extratropical cyclone, wave cyclone, frontal cyclone, family of cyclones, temperate cyclone. This is one of the category of the thermodynamic modification of your primary circulation, but beyond tropics, but beyond tropics. And whatever is here, we will see. ये आपका दूसरा topic है. First, we will take up what? The temperate cyclones. ठीक है? आपने ये लिखा? ठीक है? And two types, temperate and tropical. अब temperate में ही heading you write. इसका क्या मैकेनिज्म है, इसका बनने का मैकेनिज्म टोटल डिफरेंट है और इसका बनने का मैकेनिज्म टोटल डिफरेंट है, बट दोनों का मैकेनिज्म इज रिलेटेड टू हीट, दोनों का मैकेनिज्म इज रिलेटेड टू हीट। यहां पे टेम्परेट साइक्लोन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ हीट, a thermodynamic disturbance between air masses, between air masses. It is a thermodynamic exchange between two different types of air masses. That's why it's also known as frontal cyclone. फ्रंट पे बनता है, ये अलग एयर मास, ये अलग एयर मास, तो एक्सचेंज कहां पे होगा? फ्रंट पे, ना कि बीच में। आ गया फ्रंटल साइक्लोन। फैमिली ऑफ साइक्लोन इसलिए कहते हैं इसको, वो भी आगे देखेंगे, लेकिन बता देता हूं मैं। लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, इट विल बी फॉलोड इन अ सीरीज, ठीक है। अगर यहाँ पे लो प्रेशर है, देन उसके पीछे फिर 200 किलोमीटर के पीछे आ रहा है आपके पीछे पीछे हाई प्रेशर, उसके बाद 200 किलोमीटर के पीछे आ रहा है आपके पीछे फिर से लो प्रेशर। इट इज क्रिएटेड इन दिस मैनर, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज व्हाट, फैमिली ऑफ साइक्लोन्स। वेव क्यों? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा ही, अभी दिखाऊंगा वो कैसा। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल तो पता है, बियॉन्ड ट्रॉपिक्स एंड हैविंग सिग्निफिकेंस। इट्स नॉट जस्ट साइक्लोन ऐसे ही कोई हवा चल रही है कहीं पे। द वर्ड एक्स्ट्रा सिग्निफाइज पावर, इसका है वैसा ही पावर, बट इट्स नॉट इन ट्रॉपिक्स। तो हीट एक्सचेंज बिटवीन व्हाट, air masses is the main reason or cause of the formation of what, temperate cyclones. This is totally different from the formation of what, tropical cyclones. तो कैसे होता है ये, just see. ठीक है, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं होता, कहीं पे कॉन्टिनेंटल इफेक्ट ज्यादा होगा, वहां पे ज्यादा गर्मी ऊपर होगी या सर्दी ज्यादा ऊपर होगी। वी आर टेकिंग ए जनरल स्ट्रेट लाइन, ऐसे नहीं होता ये, ऐसे स्ट्रेट हिस्से में। मैरीटाइम पे यूजुअली इट विल बी स्ट्रेट, कॉन्टिनेंट्स पे इट वोंट बी स्ट्रेट, इट विल बी लाइक दैट, आइसोथर्म्स एंड ऑल। कहीं एयर मास अंदर घुसा होगा, कहीं एयर मास ऐसे होगा, कहीं पे ऐसे होगा, कहीं पे ऐसे होगा, ड्यू टू कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट। जहां पे ये ज्यादा हीट हुआ तो वार्म एयर मास विल पेनिट्रेट, जहां पे ये कम हीट हुआ ये कॉन्टिनेंट्स पे ज्यादा होगा। मैरीटाइम इफेक्ट में यूजुअली इट विल बी पैरेलल टू द लैटिट्यूड्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे समझ आ रहा है? तो व्हाट इज द विंड दैट इज ब्लोइंग हियर? 30 डिग्री से क्या जा रहा है यहाँ? वेस्टर्ली। ये कुछ होना है ईस्टर्ली। ऊपर से क्या आ रहा है? तो ये आपका ग्राउंड का पैटर्न है, दिस यू नो आराम से। प्लस दे आर ब्लोइंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर मासेस। ऊपर का पैटर्न क्या है? यू हैव अ पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम गोइंग ऑन इन द अपर एटमॉस्फेयर, इजंट इट? ये ऊपर वाला सर्कुलेशन ये है, नीचे वाला सर्कुलेशन ये है। हाँ, सब ट्रॉपिकल नहीं, सब ट्रॉपिकल इधर है, ये पोलर है, ठीक है। सब पोलर जेट स्ट्रीम, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट यहां पे है नीचे। अब हो क्या रहा है? अब हो रहा है ऐसा, when this gets more Rossby type, this gets more Rossby type, it gets more wavery, it gets more wavery, it penetrates into this and it penetrates into this, it penetrates in, मगर कहां पे? This causes fluctuations on ground as well, ठीक है। It is such strong wind, it causes, जो ही एयर मास को पीछे धकेलता है यहां पे ऐसे, तो ये नीचे तक एयर मास विद डेंसिटी पीछे चला जाता है। Are you understanding? जो ही ये एयर मास ऊपर इसको धक्का देता है ऊपर हवा में, तो ये जो नीचे तक इसका ऐसे है, ये इसको नीचे तक ऐसे ब्लॉक ऐसे अंदर खिसका देता है। ये बाहर किसका, ये अंदर किसका, ये बाहर किसका, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग?
ठीक है, बिकॉज डेंसिटी डिफरेंट है, मिक्सअप होना डिफरेंट बहुत ही मुश्किल है। तो अगर ये अंदर जा रहा है वहां से वो बाहर आ रहा है, क्योंकि जगह कहाँ है, जो ये मैं इसकी जगह लूंगा, यहाँ पे जो था वो मेरी जगह लेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा जगह अर्थ में नहीं है, जितनी है उतनी ही है। इफ इट इज कमिंग हेयर इट्स गोइंग देयर, इट्स कमिंग हेयर इट्स गोइंग देयर। और ये कहाँ पे हो रहा है, ये जमीन पे भी हो रहा है। जो ही जमीन पे ये हो रहा है, जहां पे इट्स कमिंग इनसाइड, जहां पे इट्स कमिंग इनसाइड, डोमिनेंस यहां वाली हवा की होगी, डोमिनेंस यहां वाली हवा की होगी। जहां पे इट्स कमिंग इन टू दिस डोमिनेंस, यहां वाली हवा की होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डोमिनेंस यहां वाली हवा की होगी। इतना अभी तक क्लियर है? ठीक है। जो आपका फ्रंट था स्टेशनरी, वो अब डिस्टॉर्ट होने लगा है। जो आपका फ्रंट था, क्या जो फ्रंट था एयर मास का, दैट इज गेटिंग नाउ डिस्टॉर्टेड। द वार्म एयर इज कमिंग इनसाइड इन द कोल्डर रीजन एंड द कोल्डर एयर इज गोइंग आउटसाइड, and from this position warm air is pushing the cold air, and from this cold air is pushing warm air. Are you understanding? It is in the northern hemisphere going on. It's in the northern hemisphere going on. Which type of circulation pattern it will follow? Which type of circulation it will follow if it is a low pressure? Anti-clockwise. And which type of circulation it will follow if it is a high pressure area? Clockwise. Let's first discuss a low pressure area. ठीक है? सपोज यहां पे क्या होता है, जस्ट वॉच, द वेव इज लाइक दिस, द वेव इज लाइक दिस, व्हेन द वेव इज गोइंग देयर, वेव इज गोइंग देयर, यहां पे जो मोशन है इट इज रिलेटिव एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी? ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में। यही वो क्रिएट करता है कहां पे? जमीन पे भी। और जब ये वाली मोशन आती है, ये वाली इज मोर क्लॉकवाइज, तो यहां वाला पोर्शन जो जमीन के नीचे होगा वो हाई प्रेशर पे आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? और यहां वाला जो पोर्शन है वो कहां पे आ जाएगा? लो प्रेशर पे। तो अल्टरनेट लो हाई के साइकिल्स आगे देखेंगे, लेकिन बन जाएंगे। धीरे धीरे इस चीज को समझो। वार्म इज पुशिंग दिस एयर, कोल्ड इज पुशिंग दिस एयर, एंड द फ्रंट इज गेटिंग डिस्टॉर्टेड। नाउ वी गॉट अ डिस्टॉर्टेड फ्रंट। अब है ताकत। This distorted front is moving in a counterclockwise direction in the northern hemisphere, and sometimes it's moving in the clockwise direction. Focus हमारा है जहां पे it is moving in the counterclockwise direction. There the air will rise up, spiraling up, creating precipitation, clouds and everything. Are you understanding? The air will rise up, creating precipitation, clouds and everything, because counterclockwise creates low pressure, and low pressure से फिर ऊपर चला जाता है सारा। Are you understanding? क्या हो रहा है? दो तरीके के फ्रंट बनते हैं, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट बनता है जहां पे वार्म एयर धक्का देती है, कोल्ड फ्रंट बनता है जहां पे कोल्ड एयर धक्का देती है। कॉमन सेंस की बात है। ये मेरा हाथ है, ये वार्म फ्रंट है, ठीक है, वार्म एयर है जो कोल्ड एयर को क्या दे रहा है? धक्का। और यहां पे कोल्ड है जो किसको दे रहा है धक्का? वार्म को। किसका धक्का ज्यादा पावरफुल होगा? कोल्ड में ज्यादा होगा। वेरी गुड। वाई? कोल्ड में क्या है? डेंसिटी ज्यादा। कोल्ड इज कॉमन से साइंटिफिक, धीरे धीरे चलेंगे। साइंटिफिक, कोल्ड में क्या होगी? डेंसिटी ज्यादा। तो टेंडेंसी ऑफ कोल्ड फ्रंट व्हेन इट इज पुशिंग विल बी लेस, कि ये ऐसे बेंड हो, बिकॉज ये ज्यादा डेंस है, इट्स मोर पावरफुल, देन कोल्ड फ्रंट विल गिव मोर पुश, स्ट्रेट पुश, एज कंपेयर टू व्हेन वार्म विल गिव द पुश टू व्हाट? कोल्ड। इसमें इतनी इंटेंसिटी नहीं होगी, वार्म फ्रंट झुक जाएगा, एंड कोल्ड बीइंग डेंसर नीचे आएगा, वार्म बीइंग वार्मर ऊपर इस पे स्लाइड होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऊपर इस पे क्या होगा? और रेनफॉल विल ऑकर, कन्वेक्शन, ठीक है, ये ना सॉरी ओरोग्राफिक, जैसे माउंटेन पे चढ़ता है वैसे ही चढ़ने लगेगा किस पे? वार्म फ्रंट पे। जो ये वार्म फ्रंट पे चढ़ा और रेनफॉल हो गई बहुत अच्छे तरीके से। क्या यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होगी या यहाँ पे होगी? कोल्ड वाले पे, कोल्ड वाले पे ज्यादा होगी। यहाँ पे इसको स्लोप मिल गई, ठीक है। यहां पे जब कोल्ड ने धक्का दिया, ये कहां जाएगा? पीछे कहीं नहीं जाएगा। इट विल राइज अलोंग एज अ वर्टिकल स्लोप, इट विल राइज अलोंग द फॉर्मिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, वर्टिकल जिसका एक्सटेंट होता है, ठीक है। तो ये यूपीएससी ने पूछा था, कोल्ड फ्रंट साइक्लोन इज मोर सीवियर देन वार्म फ्रंट साइक्लोन। यस, इट इज मोर सीवियर देन व्हाट? वार्म फ्रंट साइक्लोन, बिकॉज कोल्ड फ्रंट बेंड नहीं होता ड्यू टू इट्स डेंसिटी। वार्म से टकराता है, वार्म को ऐसे चढ़ाता है। जितना वर्टिकल राइज हाई होगा उतने क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ज्यादा फॉर्म होंगे और उतनी ज्यादा प्रेसिपिटेशन यहाँ पे इंटेंस होगी एज कंपेयर टू यहाँ पे चढ़ना, ठीक है। यहाँ पे चढ़ना और यहाँ पे चढ़ना, इसमें फर्क है। तो ये पूछ चुके हैं वो कि किस लेवल तक जाते हैं वो। और ये पहला सेंटेंस है, आप बोलोगे मैं याद करके जाऊंगा। दूसरा सेंटेंस इसकी एक्सप्लेनेशन पे था,
ठीक है, कि इसके अंदर क्या होता है फिनोमेना, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, व्हाटएवर, ठीक है, ऐसे। तो यू गेट टू फ्रंट्स इन वन टेम्परेट साइक्लोन, यू हैव कोल्ड फ्रंट, सॉरी कोल्ड फ्रंट ये वाला एंड वार्म फ्रंट ये वाला, कोल्ड फ्रंट साइक्लोन एंड वार्म फ्रंट साइक्लोन, दोनों साइक्लोन्स इन द एरिया ऑफ जहां पे आपकी प्रेसिपिटेशन होगी, जहां पे बैड वेदर होगा, उसको अकंपनी करेगा पीछे या आगे उसका हाई प्रेशर, उसका पीछे या आगे, अकंपनीड बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, यही साइक्लोन आया हमें, आ गया ताफ कुछ क्या जितने उधर गई ना मखलेवा ताई का जवाब। नाउ यू हैव काम वेदर, नो winds, nothing. Why? Because winds are sinking down. High pressure area is over Kashmir. Are you understanding? After this, there is another prediction. जब तक ये सन ऊपर की तरफ नहीं आएगा, इस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बेल्ट को ऊपर नहीं, तब तक यही चलता रहेगा कश्मीर में। There is another prediction on 12 and 13. ठीक है? That there is another prediction going on. This family of cyclones. Understand this? आ गया हमें परसों, अभी देखो कैसा है, गए जाएगा ये आएगा वो, unless and until this whole extratropical cyclone is shifted upwards with the movement of sun, और वो आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है, वो इक्वेटर के पास पहुंचेगा 21 मार्च को, और उसके बाद कहां की ओर चढ़ेगा, ऊपर की ओर, तो इसको फिर वो ऊपर धकेलेगा, फिर हमारा कोई इसके साथ हिसाब किताब नहीं रहेगा, ठीक है। जो ही वो नीचे चला जाएगा ये नीचे आएगा, और हमको भी क्या करेगा इफेक्ट, और वेस्टर्लीज तो ग्राउंड पे चल ही रही है, वो भी इसको क्या दे रही है धक्का हमारी ओर। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग? ठीक है, तो वी गेट टू टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स देयर, कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट साइक्लोन। वार्म फ्रंट इज लेस इंटेंस देन, इसका मतलब ये नहीं कि वार्म फ्रंट में इंटेंसिटी नहीं है, बट इट इज लेस इंटेंस व्हेन कंपेयर्ड टू व्हाट, कोल्ड फ्रंट साइक्लोन। ठीक है, पहले इतना लिखते हैं कुछ। यू ड्रॉ दिस डायग्राम फर्स्ट, साफ बनाना, अलग पेन से दिखाना ग्राउंड वाली हवा, और अलग कलर से दिखाना कौन सी हवा, ये ऊपर से जेट स्ट्रीम। इसमें 5-6 फिगर्स बनेगी, इसको नाम देंगे फिगर 1, फिर इसके बाद देखेंगे क्या हुआ, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। ठीक है, बनाए, इसको लिखेंगे फिगर 1, और यहां पे लिखेंगे स्टेशनरी फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट। यहां पे ये जो फ्रंट है अभी ये टूटा नहीं, अभी स्टेशनरी फ्रंट, पहली डायग्राम में ये दिखाएंगे हम, स्टेशनरी फ्रंट। ठीक है, अब फिगर 2 में ऐसे अलग कलर से ये वाली हवाएं दिखाना, और अलग कलर से ये वाली हवाएं दिखाना। दीज आर वार्म winds pushing, these are cold winds pushing here, and this is known as distorted front. You're right, this is the distorted front. Distorted front, figure 2, distorted front. यहां पे इसको लिखेंगे कोल्ड फ्रंट, यहां पे इसको लिखेंगे वार्म फ्रंट, क्योंकि जो जहां पे धक्का देगा नाम उसी के नाम से, कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट। और यहां से स्टार्ट होता है हमारी फिगर 2 से साइक्लोजेनेसिस, ठीक है, डिस्टॉर्टेड फ्रंट स्टार्टिंग द cyclogenesis, and this stage is also known as incipient stage. Incipient stage, और इस पूरे साइक्लोन को कहते हैं नेसेंट साइक्लोन। जो ये डिस्टॉर्ट फ्रंट हो जाता है, नेसेंट, अभी इनिशियल स्टेज में है, बनने की तैयारी में है, नेसेंट साइक्लोन। ठीक है, अब कुछ लिखते हैं इसके बारे में, पहले लिखो उसके बाद लिखो। एज इन फिगर 1, द कोल्ड एयर मास ब्रैकेट में पोलर ईस्टर्ली इधर फ्लो होते हैं, ब्रैकेट में पोलर ईस्टर्ली, ब्रैकेट क्लोज, एंड द वार्म एयर मास ब्रैकेट में वेस्टर्ली,
ब्रैकेट में वेस्टर्ली। क्रिएट ए स्टेशनरी फ्रंट, क्रिएट ए स्टेशनरी फ्रंट, that is the air mass along the two sides, that is the air mass along the two sides, along the two sides do not move towards each other, do not move towards each other, do not move towards each other, full stop. इसके बाद along the front, along the front between, along the front between polar cell and ferrule cell, along the front between polar cell and ferrule cell, polar cell and ferrule cell in the upper atmosphere, in the upper atmosphere, in the upper atmosphere the polar frontal jet stream flows, in the upper atmosphere the polar frontal jet stream flows. ठीक है, full stop. This jet stream moving sinusoidally, ये क्यों करेगी साइनोसोडल मूव? विंटर है नॉर्दर्न में, लगभग दोनों सेम हो रहे हैं, कल ही बताया। मोर मीएंडरिंग, वो क्यों होगा? जब कंट्रास्ट कम हो जाएगा, कंट्रास्ट कम हो जाएगा, ठीक है। मूविंग साइनोसोडली क्रिएट्स एंटी क्लॉकवाइज एज वेल एज क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, creates anti-clockwise as well as clockwise movements. Creates anti-clockwise and clockwise movements. तो ये अपर एटमॉस्फेयर में कहीं पे क्लॉकवाइज मूव कर रही है, कहीं पे एंटी क्लॉक। जहां ये अपर एटमॉस्फेयर में क्लॉकवाइज मूव करेगी, जमीन पे एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। अपर एटमॉस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज है, जमीन पे क्लॉकवाइज है, इसमें याद रखने की क्या बात है? अपर एटमॉस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज है, इट मींस अपर एटमॉस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट इज इट? लो प्रेशर। और सरफेस पे क्या बनाएगी? हाई प्रेशर। सेम एप्लीकेबल, जहां पे ये ऊपर चलेगी किसमें? क्लॉकवाइज, तो नीचे चलेगी किसमें? एंटी क्लॉकवाइज, वहां पे लो प्रेशर बनाएगी अल्टरनेट, जैसे ऊपर करा वैसे नीचे किया। तो वो लिखेंगे पहले, where it creates जहां पे ये, where it creates a clockwise movement in the upper atmosphere, where it creates a clockwise movement in the upper atmosphere, where it creates a clockwise movement in the upper atmosphere, it leads to upper atmospheric high pressure, it leads to upper atmospheric high pressure। जहां पे क्लॉकवाइज मूव किया वहां पे हाई प्रेशर, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। अपर एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर, ब्रैकेट में एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, ब्रैकेट में एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, ब्रैकेट क्लोज।